امریکی خاتون جناح اسپتال میں کس حال میں ہے؟ وہ اپنے ملک واپس جانا چاہتی ہے یا نہیں؟ امریکی خاتون نے سٹی 21 کو بتا دیا۔ اس وقت ہماری نمائندہ انوشا جعفری جناح اسپتال میں امریکی خاتون اونیجا کے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانیں گے۔ بتائیے گا انوشا۔ امریکی خاتون اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کافی خوش نظر آتی ہیں۔ How do you feel now, Onija? I feel great, Shabana. You want to go back to your country? It's private, but no, I do not. I'm from Pakistan now. How Pakistan helped and take care of you? Shabana, would you like to speak, Shabana? Okay, she's been taking care of me. Thank you very much. She's taking care of yours? Yes, Okay. everybody. This is my team. Okay. Yes, hi. Now you are feeling well? Yes, I'm going for sonogram. Okay. Yes. اوکے بالکل SHO شبانہ جیلانی کے ساتھ بہت مطمئن ہے یہ خاتون اور بہت خوش نظر آتی ہیں، اور ہماری ان سے بات ہوئی، اچھا فیل کر رہی ہیں۔ پوچھا گیا واپس جانا نہیں جانا تو انہوں نے کہا یہ پرائیویٹ ہے، فی الحال ابھی ان کو دوبارہ وہاں لے جایا جا رہا ہے پراپر چیک اپ کے لیے۔ اچھا یہ بتائیے گا Yes, so I would like to say that I'm launching a Bitcoin under Onaja Styles LLC, but it will be run under Nidal Ahmed. Yes, so anything else I would like to clear the air. Anything that you hear that's not true, that's not true, okay? Thank you. But you are looking well. Thank you so much. بالکل بات ہوئی ہماری ان سے اور اب ان کو وہاں پر لے جایا جا رہا ہے، اور اب جو ہے وہ پراپر ان کا چیک اپ کیا گیا۔ بہت خوش نظر آئی امریکی خاتون، ایکسکلوسیو ہم سے ان سے بات کی، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ شبانہ SHO جو ہیں انہوں نے ان کی کافی زیادہ ٹیک کیئر کیا، ان کی جو ٹیم ہے ان سے بہت زیادہ خوش نظر آئی ہیں، اور اب جو ہے وہ ان کو جناح اسپتال کے اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ جی، شہر قائد میں لوٹ مار پارٹ ٹائم کا کاروبار بن گیا۔ تیموریہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار 3 ملزمان کے سنسنی خیز انکشافات۔ ملزمان دن میں سبزی اور مرغی فروخت کرتے اور رات میں وارداتیں کرتے تھے۔ گرفتار ملزم ابرار سبزی جبکہ جان شیر مرغی بیچتا تھا۔ ملزم وقاص 3 مقدمات میں پہلے بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیں گے اسامہ ملک سے جو اس وقت ملزمان کے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے کہ اسامہ۔ کراچی کے گوٹھوں میں سرکاری زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا انکشاف۔ اینٹی کرپشن نے محکمہ ریونیو کچی آبادی کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ اینٹی کرپشن ڈائریکٹر انکوائریز 2 کا ڈپٹی کمشنر ضلع غربی کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ اینٹی کرپشن کے نوٹس کی کاپی سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ جمعہ گوٹ، نیک محمد گوٹ، سلیمان بروہی گوٹ کا ریکارڈ طلب۔ افسران کو 7 فروری کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدایت۔ مزید کیا تفصیلات جانیں گے مراج اختر سے، بتائیے گا۔ جی دیکھیے، کراچی میں اسٹریٹ کرائم سے بھی بڑا ایک اور کرائم ہے، اور وہ ہے زمینوں کا کرائم، لینڈ گریبر اور لینڈ مافیا کا کرائم، جو کہ سرکاری زمینوں اور جو نجی زمینیں ہیں ان پر قبضے کرتا رہا ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح کی رپورٹنگ ہوتی رہی ہے۔ اس دفعہ جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے اس چیز پر نوٹس لیا ہے اور ڈپٹی کمشنر ویسٹ کو ایک نوٹس جاری کیا ہے، جس کے مطابق منگو پیر کے علاقے میں 3 ایسے گوٹ ہیں، نیک محمد گوٹ، جمعہ گوٹ اور سلیمان بروہی گوٹ۔ ان 3 گوٹوں کے نقشے ان سے مانگے گئے ہیں، ان کی موٹیشنز ان سے مانگی گئی ہیں۔ اس میں اطلاعات جو موصول ہوئی تھی اور جو شکایات موصول ہوئی تھی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو، ان کو یہ معلوم ہوا تھا کہ یہاں پر سرکاری جو زمینیں ہیں ان کو جو ہے وہ نامعلوم لوگوں کو فروخت کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر لینڈ مافیا بھی ملوث ہے، اور سرکاری زمینوں کو اس طرح سے بندر بانٹ کی گئی ہے کہ قومی خزانے کو اس سے بھاری نقصان پہنچا ہے۔ تو فی الحال یہ صرف 3 ایسے گوٹ ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ انکوائری شروع ہوئی ہے۔ محکمہ ریونیو کے افسران ان کو طلب کیا گیا ہے، ان کو شامل تفتیش کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ کچی آبادی کا جو محکمہ ہے حکومت سندھ کا، اس کے بھی افسران کو اس میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ تو دونوں محکموں کے افسران کو طلب کیا گیا ہے 7 فروری کو وہ ڈائریکٹر انکوائریز 2 کے آفس میں ریاض لغاری صاحب جو ہیں ان کے دفتر میں پیش ہوں گے، اور ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ خاص طور پہ ان 3 گوٹھوں سے متعلق تمام تر جو تحریری ریکارڈ ہیں ان کے پاس وہ لے کر آئیں، اور گزشتہ 3 سالوں میں یہاں پر کون کون سے افسران تعینات رہے ہیں جن کی تعیناتی کے دوران میں یہ سرکاری زمینوں کی بندر بانٹ ہوئی اور ساری ہیر پھیر کی گئی، ان کا بھی ریکارڈ مانگا گیا ہے کہ وہ اس وقت کہاں پوسٹ ہیں۔ تو ایک بڑی ہائی پروفائل انکوائری ہے جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے شروع کی گئی ہے، اور اس میں 7 فروری کو ان تمام افسران کو طلب کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کراچی میں جب اسٹریٹ کرائم اور دیگر جرائم کے بعد جو بات آتی ہے وہ آتی ہے لینڈ مافیا کی بات۔ تو لینڈ مافیا کے مختلف گروپوں نے خاص طور پر ویسٹ زون میں جو ہے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ منگو پیر کا علاقہ ہے، اس کے علاوہ سرجانی ٹاؤن کا علاقہ ہے، اس کے علاوہ گڈاپ ٹاؤن کا علاقہ ہے، جہاں پر جو ہے سرکاری زمینوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے اور پھر
वहाँ पर उसको गोट का नाम देने के बाद जो है लोगों को आबाद कर दिया जाता है। हालांकि बरक्स इसके ये होता है कि इसमें लाखों और करोड़ों रुपए लेने के बाद जो है वो प्लॉट काट कर फ़रोख्त किए जाते हैं। तो बहरहाल एक बहुत अच्छा जो है फैसला है एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट का कि वो इस हवाले से तहकीकात कर रही है। अब देखना यह है कि इस तहकीकात का नतीजा क्या निकलता है, ये सर्द खाने की नज़र होती है या फिर वाकई इस पर एक्शन होता है और सरकारी जो वो मुलाजमीन हैं जिन्होंने कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया उनको गिरफ्तार किया जाता है या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है या नहीं। जी अच्छा, मिराज अख्तर ये भी बताएगा कि अफसरान को 7 फरवरी को रिकॉर्ड समेत पेश होने की तो हिदायत कर दी है, तो इसकी डेडलाइन क्या मुकर्रर की गई है? देखिए जी, 7 फरवरी को इनको बुलाया गया है एंटी जो करप्शन के जो डायरेक्टर इंक्वायरीज 2 हैं उनके दफ्तर में। ये वहाँ पर अपना 3 साल का वो रिकॉर्ड लेके आएंगे कि इन 3 सालों में महकमे रेवेन्यू के कौन कौन से अफसरान और एहलकार यहाँ पर तैनात रहे हैं वेस्ट उसमें डीसी वेस्ट को जो लिखा गया है। और 3 सालों के दौरान में ये जो 3 गोट जिनका मैंने नाम लिया, नेक मोहम्मद गोट, जुम्मा गोट और सुलेमान बुरही गोट, इसमें जो ज़मीनें थी सरकारी उनको किस तरह से अलॉट किया गया और किस किस को अलॉट किया गया इसका, और इसके बाद अलावा किस किस के मुटेशन हुई है, तो ये तमाम कागजात उन्होंने बिल्कुल मांगे हैं। अगर शफाफ तरीके से इस पूरे वाक़े की और पूरे मामले की करप्शन की इंक्वायरी की जाए तो इसमें वाज़े तौर पे ये नज़र आएगा कि इस पूरे मामले में लैंड ग्रैबर जो है वो जो है बिल्कुल मुलविस थे और उन्हीं लैंड ग्रैबर्स की सहूलतकारी में महकमे रेवेन्यू और महकमे कच्ची आबादी के जो अफसरान थे वो भी मुलविस थे, जिन्होंने मिलकर कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुँचाया और जो ज़मीन थी जो सरकारी ज़मीन थी उसको हड़प लिया गया। बहरहाल अभी ये इंक्वायरी जारी है और जैसी ये इंक्वायरी फाइनल होती है तो उसके बाद पता चलेगा कि इन लोगों के खिलाफ FIR की जाती है, इन्हें गिरफ्तार किया जाता है या नहीं। जी मिराज अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सिंध रेंजर्स और कस्टम्स हुकाम की खुफिया इतला पर मुश्तरका कार्रवाई की गई है। न्यू टाउन की हदूद से भारी मिकदार में स्मगल शुदा नॉन कस्टम पेड टायर्स बरामद किए गए, जबकि मालियत करोड़ों रुपए की बनती है। आपको बताएं, सिंध रेंजर्स और कस्टम्स हुकाम की खुफिया इतला पर यह मुश्तरका कार्रवाई की गई है। न्यू टाउन की हदूद से भारी मिकदार में स्मगल शुदा नॉन कस्टम पेड टायर्स बरामद हुए, जबकि इनकी मालियत करोड़ों रुपए बनती है। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल महानूर, देखें ये सिंध रेंजर्स और कस्टम इन्फोर्समेंट की जो है मुश्तरका कार्रवाई सामने आई है, जिसके नतीजे में जो है वो कराची के इलाके न्यू टाउन से भारी मिकदार में स्मगल शुदा जो नॉन कस्टम पेड टायर्स हैं उनको जो है वो छापा मार के बरामद कर लिया गया है। रेंजर्स हुकाम का बताना है कि टायरों को जो है वो गोदाम में छुपाया गया था, जिसमें जो है वो जिसकी मालियत जो है वो मुख्तलिफ कंपनियों के टायर हैं जिसकी मालियत करोड़ों रुपए की बनती है। अब जो है वो रेंजर्स ने अपनी तहवील में लेकर बरामद शुदा जो नॉन कस्टम पेड टायर्स हैं उनको जो है वो अब कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। मजीद भी रेंजर्स का बताना है कि तफ्तीश की जा रही है, मुल्जिमान की दीगर भी गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी मालियत की जो है अहम कार्रवाई सामने आई है रेंजर्स की जानिब से, जिनमें नॉन कस्टम पेड जो है वो करोड़ों रुपए मालियत के टायर जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। जी उसामा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। 37,792 में से सिर्फ 11,308 तलबा पास, बाकी सब फेल। इंटर के नताइज में कॉमर्स आर्ट्स के तलबा की बड़ी तादाद नाकाम। कॉमर्स ग्रुप के नताइज में कामयाबी का तनासुब सिर्फ 30.9, आर्ट्स ग्रुप में 28.77% रहा। खसूसी उम्मीदवारों के नताइज बेहतर, आम तलबा पीछे रह गए। खुसूसी उम्मीदवारों में कामयाबी का तनासुब 77.9% रहा, जबकि कराची तालीमी बोर्ड के नताइज पर वालिदैन और तलबा परेशान है। तफसीलात जान लेंगे, सैयद जुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के नताइज में कॉमर्स आर्ट्स के तलबा की बड़ी तादाद जो है नाकाम रही है। 37,792 में से सिर्फ और सिर्फ 11,308 तलबा जो है पास रहे, जबकि बाकी तमाम तलबा जो है फेल हो गए। कॉमर्स रेगुलर में 28,000 से सिर्फ और सिर्फ 8,494 तलबा जो है वो पास हुए, जबकि कॉमर्स ग्रुप के नताइज में कामयाबी का तनासुब 30.9% जो है वो रहा है, जबकि आर्ट्स रेगुलर में 9,792 में से सिर्फ और सिर्फ 2,818 तलबा जो है वो पास करार पाए। आर्ट्स ग्रुप के नताइज में कामयाबी का तनासुब 28.77% रहा, जो कि इंतहाई कम रहा। खुसूसी उम्मीदवारों के नताइज बेहतर हुए, जबकि आम तलबा जो है वो इस दौड़ में पीछे दिखाई दिए। खुसूसी उम्मीदवारों में कामयाबी का तनासुब
79.9% कहा। कराची तालीमी बोर्ड के नताइज पर वालिदैन और तलबा जो है वो परेशान है। आर्ट्स, कॉमर्स और खुसूसी उम्मीदवारों के नताइज जो है ताखीर से आला तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से जारी किए गए, जिसपे ऐसा रिजल्ट दिया गया जिस पर जो है एक तो खराब रेशियो बना, दूसरा उस खराब रेशियो के बायस तलबा और वालिदैन जो है उनमें तशवीश की एक लहर जो है वो पाई जाती है। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा जुबैर आप। फपासा सिंध ने जामिया का तरमीमी एक्ट 2025 मुस्तरद कर दिया। असाजा का तदरीसी अमल के साथ एहतजाज जारी रखने का भी ऐलान। असाजा स्याह पटिया बांग का तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देंगे। सैयद जुबैर राशिद हमारे साथ ही मौजूद है, बताइएगा इस हवाले से भी। जी बिल्कुल, देखिए फपासा सिंध का तालीमी इदारों की खुद मुख्तारी पर हुकूमती मुदाखलत पर शदीद एहतजाज। फपासा सिंध ने सिंध यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट लॉ तरमीमी एक्ट 2025 मुस्तरद कर दिया। बैरोक्रेट्स वाइस चांसलर की तकर्री तालीमी इदारों की खुद मुख्तारी पर हमला है, फपासा सिंध चैप्टर का ये कहना है। जबकि असातिज़ा का मौक़िफ़ है कि हुकूमत तालीम पर सियासी कंट्रोल हासिल करना चाहती है। असातिज़ा का तदरीसी अमल के साथ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। 6 फरवरी से तदरीसी सरगर्मियाँ आर्जी तौर पर बहाल कर दी गई हैं। असातिज़ा स्याह पटिया बांग से तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देंगे। हर मंगल को तदरीसी सरगर्मियाँ मुअत्तल करके एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। फपासा सिंध की जानिब से ऐलान किया गया है। हुकूमती अहदेदारों की दौरों का मुकम्मल बाइकआउट किया जाएगा। कराची, हैदराबाद, खैरपुर में जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने का भी फैसला कर लिया गया है। फपासा सिंध चैप्टर ने कहा है कि अदालत में कानूनी जंग, मीडिया दबाव और आलमी इदारों को आगाह करने से मुतल्लिक हिकमत अमली जो है वो तश्कील दे रहे हैं। फपासा सिंध के मुताबिक अगर तरामीम वापस ना ली गई तो एहतजाज मजीद जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर्स की हिदायत पर अमल करना मोमिनाबाद टाउन इंतजामिया के लिए दर्द सर बन गया है। इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और ग्रीन बेल्ट का कयाम तजावुजात माफिया ने माहौल बना रखा है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताएंगे रिजवान अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई माह से शहर भर में इंसदाद तजावीज़ात की कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में चलाई जा रही हैं, लेकिन माफिया किस कदर ताकतवर है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता रोज़ नॉर्थ कराची में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब KMC के महकमा इंसदाद तजावीज़ात के अमले पर हमला हुआ, और इससे चंद रोज़ कबल जो है मोमिनाबाद टाउन इंतज़ामिया की जानिब से एक काविश पर पानी फेर दिया। इस माफिया ने बादशाह खान फ्लाई ओवर के नीचे टेनिस कोर्ट और ग्रीन बेल्ट तामीर करने का मनसूबा था, जिसके लिए तजावीज़ात रिमूव की गई, लेकिन मंसूबा पर तकमील नहीं पहुंच सका। चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मौजूद है मलिक आरिफ ऐवान। शहर का मौसम तब्दील होने से जल्दी अमराज में इजाफा हो गया। न्यू कराची के सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में रोजाना 300 से ज़ायद मरीज से रिपोर्ट हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। देखिए बिल्कुल, शहर कायद का मौसम तब्दील होते ही शहर में जल्दी इमराज में इजाफा हुआ है। ख़ासतौर पर ख़वातीन जो है जल्दी इमराज का ज़्यादा शिकार होकर मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में रिपोर्ट हो रही हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में, जो कि गुंजान आबाद तरीन इलाके में ये कायम है, और यहाँ पर बड़ी तादाद में मरीज़ भी रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं शोबा इमराज जल्द की डॉक्टर सुमैया जमाल साहिबा के हमरा। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे केसेस कितने रिपोर्ट हो रहे हैं। मैडम बताइएगा कि कितनी तादाद में मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, ज़्यादा ख़वातीन हैं, मर्द हैं, और क्या एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी आप बताएंगी। कैंप स्टेशन पर दिन रात मुसाफिरों की बड़ी तादाद में आमद और रफ्त जारी रहती है। इसके बावजूद सीटों की कमी, मुसाफिर टिकट के हसूल के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहने पर मजबूर हो गए। डीसी और रेलवे कराची शीमा गनी कहती हैं प्लेटफॉर्म और बिजनेस क्लास के रिजर्वेशन में सीटें लगा दी गई हैं। मजीद इंतजामात जारी हैं, तफसीलात जान लेंगे नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर से स्टेशन पर मौजूद हूँ और आज मेरे साथ बात करने के लिए DCO रेलवे शीमा गनी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कराची कैंट स्टेशन पर मुख्तलिफ जो है वो मसाइल पेश आ रहे हैं। जहाँ रेलवे इंतजामिया काम कर रही है कि अभी देखा जा रहा है वहाँ पर LCD लगा दी गई है, टोकन सिस्टम कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको बेहतर करने की जरूरत है। जैसा कि कल ही हमने दिखाया कि सीटें जो है वो मौजूद नहीं थी, मुसाफिर ये शिकवा कर रहे थे कि लाइन में लगने के लिए खड़ा रहना पड़ता है। तो इस पर बात कर लेते हैं DCO से कि वो इस चीज पे किस तरीके से काम कर रही है। हम देख रहे हैं कैमराज लग गए, टोकन मशीन लग गई है। अब क्या आपका अगला कदम है, किस तरीके से इंतजाम को बेहतर करना है? अस्सलाम वालेकुम अक्सर। एक तो आपने जो बात की है कि सीटें कम हैं, उस पर मैं बताती चलूं कि हमने अभी रिसेंटली जो है वो बेंचेस लगवाई हैं
آپ کا جو مین ہال ہے کرنٹ بکنگ ہال وہاں پہ بھی بینچز ہم نے ایڈ کی ہیں, ہم نے پلیٹ فارم پہ بینچز ایڈ کی ہیں. اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہمارا اسٹیپ ہے وہ یہی ہوگا کہ ہم اکانومی ریزرویشن ہال اور اپر ریزرویشن ہال میں مزید بینچز انکریز کریں. تو انشاءاللہ ود ان اے منتھ اور سو آپ کو اس میں واضح امپروومنٹ نظر آئے گی, ہماری نمبر آف بینچز انکریز ہوں گی. باقی جہاں تک بات کریں ٹوکن سسٹم کی, تو ڈیفینیٹلی ہم نے ٹوکن سسٹم انٹروڈیوس کرایا ہے اپر ہال میں. اس کے علاوہ ہم اکانومی ہال میں بھی انٹروڈیوس کرائیں گے اکانومی ریزرویشن سسٹم میں. اپر ریزرویشن سسٹم کا جو آپ کا ٹوکن سسٹم ہے, ڈیفینیٹلی لوگ ابھی فی الحال تو ریلکٹنٹ ہیں اس کو یوز کرنے میں, بٹ آہستہ آہستہ ہم اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے. اچھا یہ بتائیے گا, ہم دیکھتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کے نظام بھی جو ہے وہ اس کو کیے جا رہے ہیں, تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ آپ خود بھی وزٹ کرتی رہتی ہیں؟ جی بالکل, ہماری پوری کوشش ہے کہ ٹرینز کے جو مین آپ کے پیک آورز ہوتے ہیں اس میں بھی اور ویسے بھی صفائی ستھرائی جو ہے اسٹیشنز پہ 24/7 ہوتی رہے. صفائی ستھرائی کے نظام سمیت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹوکن سسٹم بھی وہاں پر کر دیا گیا ہے. اکنامی کلاس میں اب تک جو ہے وہ ٹوکن سسٹم مشینری جو ہے وہ نہیں لگائی گئی ہے, جسے جلد از جلد لگا دیا جائے گا. اپر کلاس یعنی بزنس اکنامی میں جو ہے وہ تمام کام مکمل کر دیا گیا ہے. سیٹوں کے ارینجمنٹ جو ہے وہ پلیٹ فارم اور اپر کلاس میں ہو چکی ہے. اکنامی کلاس میں بھی کام جاری ہے اور مزید جو ہے وہ سسٹم کو جو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.